Okay, so yesterday, uh, until yesterday, we have completed or till the digestive system. So we'll move forward the respiratory system. ठीक है, respiratory system की ओर हम बढ़ेंगे. तो respiratory system कल start करते वक्त और या फिर just एक brief questions पूछे थे. वो थे why do we breathe? हम breathe क्यों करते हैं? Right? जरूरी क्या है कि हाँ हम सांस ले. Right? सांस लेने का main concept यही था. That is अगर if we are just making हमने डाइजेस्ट किया है राइट डाइजेशन हुआ है राइट सो डाइजेशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं राइट वो न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू यूटिलाइज राइट एंड इट नीड टू बी फॉर आवर बेटरमेंट हमारे बेटरमेंट के लिए दैट्स व्हाई देयर इज ए ब्रीथिंग इन्वॉल्व एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन इज व्हाट रेस्पिरेशन इज the oxidation of nutrients in the living cells to release energy for biological work. और कहाँ पर होता है? It takes place in all cells of the body. Right? Respiration क्या है? It is the oxidation of nutrients in the living cells to release energy for biological work. Right? Biological work के लिए respiration जो है वो रहता है. It takes place in all cells of the body. हर एक बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन हर एक सेल्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है वो होता है. Right? First thing that is what is respiration? Respiration is the oxidation of nutrients. जो nutrients है उसका oxidation, right? जैसे मैंने कहा that is why do we breathe? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना खाया हमने राइट एंड खाना खाने के बाद वो पचने के बाद अब्सॉर्ब हुआ इन द ब्लड सिस्टम थ्रू द कैपिलरीज और जो न्यूट्रिएंट्स उसमें पहुंचा है उसका ऑक्सीडाइजेशन राइट ऑक्सीडेशन जो है वो किया जा रहा है किस लिए? एनर्जी को रिलीज करने के लिए फॉर बायोलॉजिकल वर्क काम करने के लिए. सो दैट्स व्हाई द वी ब्रीथ. अलग अलग डिफरेंट वेज में रेस्पिरेशन होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू मेक एटीपी. Right? ATP stands for adenosine triphosphate. It is the energy currency. Right? इसको energy currency of the cell जो है कहा जाता है, बोला जाता है. Respiration जो है वो अलग अलग कंडीशन में अगर देखा जाए right, तो respiration को किस तरीके से यूज किया जा सकता है? That is, it is used in several different ways. पहला cellular respiration, दूसरा respiratory system जो कि हमारे अंदर है. Are the organs? What are respiratory system? Are the organs in which in animals that exchange gases with the environment, and respiration is an everyday term that is often used to mean breathing. That respiration जो है वो हर दिन का एक वर्ड है लेकिन हम जो हर दिन हम रेस्पायर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है likewise we don't use right we use or we usually tell regarding or we usually use the word that is breathing. Right? So respiration is an everyday term that is often used to mean breathing. Breathing का जो term है, right? उस चीज को लेकर जब हम बात करते हैं इसको क्या कहा जाता है? Respiration कहा जाता है. अब जैसे हम अलग conditions में कहते हैं, right? अलग conditions में हम बोलते हैं, right? कि respiration की जरूरत क्या है? वो हमने starting में देखा, right? कि क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है. सबसे पहला उसके अंदर क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह यूज किया जाता है. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है. क्यों हो रहा है? ताकि एटीपी बनाया जा सके. एटीपी क्या था? दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द डे. हमें एनर्जी जो मिल पाती है राइट वो एनर्जी जो है वो किस वजह से मिल पाती है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. Moving on, these are the organs in the respiratory system, right? Organs in the respiratory system are this: nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. What are the organs? Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, right? So, in this, I said you can ask me the doubt when I asked you. I will not respond now. ATP stands for adenosine triphosphate, right?
I will clear all the doubts only afterwards. I will not now ask or tell anything in between. Is it clear? Okay. So what did I say? The organs in the respiratory system, what are the organs? That is the nose. क्या करता है nose का function क्या? It warms, moistens and filters air as it is inhaled. क्या करता है वो function? वार्म करता है, मॉइस्चन करता है और एयर को फिल्टर करता है, जैसे उसको या फिर तब जब उसको इनहेल किया जाता है तब. राइट, वार्म्स, मॉइस्चन्स एंड फिल्टर्स. Pharynx में क्या है? पैसेज वे फॉर एयर लीड्स टू ट्रकिया. राइट, pharynx क्या है? पैसेज वे फॉर एयर है, लीड्स टू ट्रकिया. Pharynx क्या है? द वॉइस बॉक्स where the vocal cords are located. हम जब आवाज निकालते हैं या फिर जब हम बात करते हैं, तो जो बात करते हैं जो आवाज आती है वो लैरिंग्स के वजह से होती है, और लैरिंग्स ही है जहां पर हमारा वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है. ट्रकिया क्या है? वो हमारे विंड पाइप को हमेशा ओपन रखता है, और ट्रकिया के अंदर बाल जैसे सब्सटेंस होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनका मेन काम क्या है, जो कि रेड लाइन है लिखा हुआ है, दैट इज ये एयर को लंग्स में जब एयर पहुंचता है उससे पहले उस चीज को फिल्टर करते हैं. दे फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स. राइट, व्हाट डज इट डू? इट filters the air before it reaches the lungs. Bronchi are what? Bronchi are two branches at the end of the trachea, each lead to a lung. Right? Bronchi क्या है? Two branches है end of the trachea में, जो कि क्या पहुंचते हैं? लंग तक पहुंचते हैं. Bronchioles उसके प्राइमरी ब्रांचेस या प्राइमरी, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं. राइट, ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रांचेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी है. ब्रोंकियोल्स के अंदर भी जो, और उससे भी मतलब ब्रोंकाई के बाद, राइट, ब्रोंकाई के बाद भी जो उनका नेटवर्क रहता है स्मॉलर ब्रांचेस को, उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल्स कहा जाता है. एल्वियोलाई, दिस इज द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट्स इन द लंग वेयर गैसेस आर एक्सचेंज. राइट, हम हमेशा से हम पढ़ते हैं कि लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स ही है जो सब कुछ मतलब सांस लेने में, राइट, छोड़ने में मदद करता है. राइट, एक्चुअली अभी के टाइम पर तुम्हें ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि द रियल थिंग इन द लंग्स विच एक्चुअली एक्सचेंजेस द गैसेस इज व्हाट? एल्वियोलाई. राइट, इतना बड़ा लंग का स्ट्रक्चर है, लेकिन उस पूरे लंग के स्ट्रक्चर में एक ऐसा चीज या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, वो क्या है? एल्वियोलाई. राइट, तो इसलिए हमें वो ध्यान में रखना चाहिए. राइट, एंड कंपोनेंट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. राइट, टेक्स्ट बुक में मैंने टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के लिए कहा था. टेक्स्ट बुक में तुम्हारा दो प्रकार से डिविजन है. राइट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आ रहा है? दैट इज नोज, राइट, लैरिंग्स. राइट, सो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. राइट, साइनस यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एक्सटर्नल नोज, राइट, नॉस्ट्रिल, टंग, pharynx, glottis, epiglottis. Right, these all are the things which are present. So now we will go to the components which are there in your textbook, according to your textbook. The nose क्या करता है? It is the only external visible part of the respiratory system. Respiratory system का एकमात्र बाहर दिखने वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? नोस. राइट, एंड नोस के अंदर जहां से हवा एंटर करती है, एयर एंटर करती है, राइट, जो कि एक्सटर्नल लेयर्स, उनको क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है.
द इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ नेसल कैविटी डिवाइडेड बाय नेसल सेप्टम। जो इन नोज का इंटीरियर है, राइट, वो डिवाइडेड है, राइट, दो भागों में डिवाइडेड है, राइट। सो दो भागों में डिवाइडेड, जो उसके बीच में, राइट, जो हम नोज ब्रिज जिसको बोलते हैं, राइट, तो वो उसको क्या है, डिवाइडेड बाय द नेसल सेप्टम। वो किससे डिवाइडेड है? नेसल सेप्टम से डिवाइडेड है। फैरिंग्स की बात की जाए, राइट, तो फैरिंग्स के अंदर क्या होता है? फैरिंग्स के अंदर मस्कुलर पैसेज फ्रॉम नेसल कैविटी टू लैरिंग्स। फैरिंग्स क्या होता है? दैट इज नोज के बाद नेक्स्ट आने वाला रीजन है फैरिंग्स। फैरिंग्स में मस्कुलर पैसेज है वो, जो कि नेसल कैविटी से लैरिंग्स के बीच का एक क्या बोलते हैं, कॉमन पाथ है, राइट। और फैरिंग्स एक जिसे बोला गया है, राइट, दैट इज फैरिंग्स के तीन रीजन है, राइट। 3 रीजन है, कौन कौन सा है? नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंजियोफैरिंग्स। नेसोफैरिंग्स क्या है? सुपीरियर रीजन बिहाइंड नेसल कैविटी। सुपीरियर मतलब क्या होता है? एकदम ऊपर, सबसे पहले आने वाला, राइट। सो अगर हम अंदर करें तो नेसोफैरिंग्स, फिर ओरोफैरिंग्स एंड लेरिंजियोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स क्या है? मिडल रीजन बिहाइंड द माउथ। लेरिंजियोफैरिंग्स इंफीरियर रीजन अटैच्ड टू द लैरिंग्स। एक नेसल कैविटी के जस्ट पीछे है, जिसको नासोफैरिंग्स कहा जाता है। एक माउथ के जस्ट पीछे, जिसको ओरोफैरिंग्स कहा जाता है। और एक लैरिंग्स से अटैच्ड है, राइट, इसको लेरिंजियोफैरिंग्स कहा जाता है। और pharynx, that is oropharynx and the laryngopharynx are the common passageways for air and food, right? air और food के लिए कॉमन पैसेज जो है वो क्या है? ओरोफैरिंक्स और लेरिंजियोफैरिंक्स। अगर इतना भी ब्रीफ में, इतना भी डिटेल में तुम अगर नहीं पूछा जाता या फिर डिटेल में नहीं लिखते, तो फैरिंक्स इज ऑल्सो you can name pharynx, or the pharynx is the common pathway of food and air. बट इफ इट इज asked specifically, अगर स्पेसिफिकली अगर पूछा गया है तो ये लिखना जरूरी होता है, दैट इज ओरोफैरिंक्स और लेरिंजियोफैरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेजवे रहता है फॉर एयर एंड फूड। नेक्स्ट जैसे कहा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है, राइट। ये क्या करता है? एयर को और फूड को प्रॉपर चैनल में रूट करता है। प्लेज अ रोल इन स्पीच, राइट। हम जो बात करते हैं, हम जो बोलते हैं, उसमें सबसे मेन रोल किसका रहता है? लैरिंग्स का रहता है। किससे बना रहता है? मेड अप ऑफ 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेजेस एंड स्पून शेप्ड फ्लैट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, राइट। एक 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, राइट। और एक उसके ऊपर एक लिड है। लिड मतलब क्या? ढक्कन है, राइट। ढक्कन जैसा एक चीज है, राइट। शेप फ्लैप एक ढक्कन जैसा चीज है, जिसको क्या कहा जाता है? एक एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो कि एक इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। फिर वोकल कॉर्ड्स है, और वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होने की वजह से ही आवाज हमारी निकलती है। हमारी आवाज जो निकलती है वो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन की वजह से ही होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फंक्शंस क्या क्या है? ये पैसेजवे फॉर रेस्पिरेशन, receptors for smell, filters incoming air to the filter larger foreign material, moistures and warms incoming air, resonating chambers for voice, right? So these are the important functions, right? है ना? इसलिए जनरली कहा जाता है, राइट, डॉक्टर्स भी कहते हैं, और जब भी हमें कहा जाता है कि हमें सांस कैसे लेनी चाहिए, राइट, सांस हमें नाक से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एयर हम नाक से लेते हैं, राइट, उसके अंदर क्या होता है पर्टिकुलरली? इट इज filtered, right? It is filtered, right? It is filtered. That's why we can say that, right? It filters incoming air to filter larger foreign material. इसीलिए it is advised, if you while breathing, breathe through nose, because it filters the impurities which are present in the environment, which are present outside, right? उसको वो फिल्टर करता है, उसको वो लार्जर फॉर्म में। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया, वायरस, उन सबको भी फिल्टर कर सकता है। एक हद तक बैक्टीरिया को कर सकता है, लेकिन उतना भी नहीं। इसमें स्पेशली बोल रखा है लार्जर फॉरेन पार्टिकल्स, राइट, लार्जर फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल, राइट। फॉर एग्जांपल है ना, सांस जब लेते हैं, अगर हम मुंह से सांस लेते हैं, राइट, तो मक्खी घुस सकती है, राइट। लेकिन अगर पर्टिकुलरली नोज से लेते हैं तो देयर इज less chance, very less chance, right? Very less chance
of that. And next thing, why it is considered that you should take the air from your nose, that is it moistens and warms the incoming air. And last thing regarding the voice box, that is this resonating chambers. Resonation मतलब क्या है, मतलब एक vibration kind of feel जो है वो होने की वजह से आवाज जो है वो अच्छी तरह से स्पीच जो है वो प्रोड्यूस होता है because of voice box. Whenever we speak, right, when we just keep our hands here, right, जब हम hands जो है हम अपना यहाँ पर रखते हैं, right, तो we will feel that there is a resonating chamber, right, resonation जो है वो हमें दिखता है, एक rotating kind of experience, एक vibration का experience होता है, right, तो वो हमारा कहाँ का function है, upper respiratory tract का function है. सबसे पहला passageway for respiration, second receptors for smell, third filters incoming air to the filter larger foreign material, next moistens and warms incoming air, next resonating chambers for voice, right. And moving, these are the components of lower respiratory tract. कहाँ तक था? Upper respiratory tract. We will start again. Nose, pharynx, right? Nose or pharynx, right? Then larynx. Larynx का एक part, right? So now nose and pharynx, actually nose and pharynx comes under the upper respiratory tract. Pharynx में भी तीन है, oro, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लैरिंग्स आ जाता है, ट्रकिया आ जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, राइट, एंड लास्ट वन दैट इज एल्वेलाई. सबसे पहला दैट इज ट्रकिया, जो कि लैरिंग्स के कनेक्टेड है, राइट. यहाँ पर एक और बात है, लैरिंग्स जो है अपर वॉइस बॉक्स में आ रहा है, अपर रेस्पिरेटरी में आ रहा है, तो लैरिंग्स से अटैच्ड जो ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस से अटैच्ड है उसको क्या कहा जाता है? ट्रकिया कहा जाता है, राइट. सो connects larynx with bronchi. Larynx को bronchi से connect करता है. Lined with ciliated mucosa, right? Beat continuously in the opposite direction of incoming air. Expel mucus loaded with dust and other debris away from lungs. क्या क्या है? Ciliated mucosa जो है, कहा था ना पहले कि ट्रकिया के अंदर cilia present है, तो cilia और mucosa present है, तो वो क्या करता है? वो लगातार जो है पुश करता है, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर. इनकमिंग एयर जो आती है उस एयर के अंदर वो वापस इस प्रकार से मूवमेंट जो है वो होता है. तो इस प्रकार से मूवमेंट होने की वजह से क्या है कि अगर उस इनकमिंग एयर में कुछ भी पार्टिकल्स है तो वो उसको क्या करता है? एक्सपेल आउट करता है, उसको अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है. एक्सपेल म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम लंग्स. और जो म्यूकस लोडेड विद डस्ट है, राइट, जो लोडेड विद डस्ट है वो दूर करता है डेब्रिस, राइट. वॉल्स जो है वो रीइंफोर्स्ड होते हैं विद सी शेप हाइलन कार्टिलेज, राइट. सी शेप हाइलन कार्टिलेज से क्या किया जाता है? ये कवर्ड है, इसका बॉडी जो है वो कवर्ड है. सो ट्रकिया का इंपॉर्टेंस किन चीजों में है? सबसे पहला कि वो उसके अंदर इनर लाइनिंग जो है वो सीलिया से इनर लाइनिंग है, और वो किस में मदद करता है? दैट इज इट बीट कंटिन्यूसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन and it expel mucus loaded with dust. mucus को expel करता है जो कि dust से loaded होता है. अभी ज्वाइन कर रहा, अभी कितना टाइम हो रहा है? 11. So next is the primary bronchi. Primary bronchi, that is first division, right? उसके ट्रकिया के पहले डिवीजन में जो बन रहा है, that is the bronchi. It enters the lung at the hilus. Right bronchus is wider, shorter and straighter than left. Bronchi subdivide into smaller and smaller branches. Right? Bronchi क्या करता है? Subdivide करता है किसमें? Smaller और smaller branches में वो divide. सबसे पहला क्या है प्राइमरी ब्रोंकाई का? ये ट्रकिए के डिवीजन में बनता है. नेक्स्ट, इट एंटर्स द लंग एट द हाइलस, राइट. हाइलस मतलब क्या है? राइट, दिस एंट्री जो है ना,
ये जो एंट्री जो है ना, this entry, right, this entry is known as hilus, right? So यहाँ पर इससे जो रहता है कि वो कहाँ से एंट्री ले रहा है, that is the thing which is written. Enters the lung at the hilus, that's medial depression, right? And right bronchus is wider, shorter and straighter than the left. Right bronchus जो है वो क्या है, wider है, shorter है और straighter है than the left. Bronchi divide into smaller, subdivide into smaller and smaller branches, right? जैसे कहा प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जो कि ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, right? So वो और छोटे छोटे चीजों में डिवाइड होता है. प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है? इट इज द वन विच इज एंटरिंग इनटू द लंग्स, राइट, जो लंग्स में एंट्री कर रहा है. और जो राइट ब्रोंकाई जो है वो वाइडर है, थोड़ा चौड़ा है, छोटा है और थोड़ा लंबा है, राइट, स्ट्रेटर दैन द लेफ्ट, दैट इज इट इज स्ट्रेट. एंड एल्वियोलाई की बात की जाए, now they are joining one by one. Right, alveoli की बात की जाए तो alveoli are moist, thin-walled pockets which are the site of gas exchange. Right, ये क्या है? गैस एक्सचेंज के साइट है. यहाँ पर ही एग्जैक्टली क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है. A slightly oil surfactant prevents the alveoli from collapsing and sticking together. Surfactant मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक लिक्विड बेस्ड है या फिर एक सरफेस में एक सब्सटेंस रहता है जो कि क्या करता है, एक दूसरे एल्वियोलाई को चिपकने से और उसको कोलैप्स होने से, गिर जाने से, राइट, उसको क्या करता है? बचाता है. तो वो दो चीज ध्यान में रखना. एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई आर द मॉइस्ट thin-walled pockets which are the site of gas exchange, and next a slightly oil surfactant prevents the alveolar walls from collapsing and sticking together. अब उसके अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो होती है, दैट इज इन द एल्वियोलस. इन द एल्वियोलस में क्या होता है? द रेस्पिरेटरी सरफेस इज मेड अप ऑफ एल्वियोलाई एंड कैपिलरी वॉल्स. एंड ये पूरा एक दिस इज ए स्ट्रक्चर, राइट. ये एक स्ट्रक्चर जो है ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, राइट. इस एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर के अंदर क्या हम देख सकते हैं? दैट इज जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो this respiratory surface जो है, इस respiratory surface के अंदर we can see that these are the capillaries, right? Wait once again. Okay, these are the capillaries जहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहे हैं वो क्या है? RBC है, right? These are the RBCs, right? So respiratory surface किससे बना हुआ है? alveoli से बना हुआ है और capillary wall से बना है. This is one alveoli, ऐसा ऐसे this is alveoli, right? And किससे है? That is alveolar membrane, तुम देख सकते हो, right? This is the alveolar membrane, right? This is the respiratory membrane, this is the surfactant liquid, right? Surfactant liquid, right? जो कि surfactant fluid का main काम क्या है? It prevents the alveoli from collapsing and sticking to each other. Okay, so what does it do? It the respiratory surface is made up of alveoli and capillary walls. The walls of the capillaries and the alveoli may share the same membrane, right? यहाँ पे देख सकते हैं कि ये same membrane share कर रहा है, right? तो इस तरीके से हमारा exchange of gases जो है वो होता है, right? From the pulmonary artery से क्या आया? इम्प्योर ब्लड आता है, राइट. इम्प्योर ब्लड जैसे इसके अंदर होता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रेड ब्लड सेल्स. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर है वो यहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है, राइट. उसके बाद फाइनली आरबीसी के अंदर पूरा ऑक्सीजन जो है वो आ जाता है, राइट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो चीजें हैं
वो या फिर किस प्रकार से रेस्पिरेशन के अंदर कंडीशन जो है वो फॉलो किया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फंक्शंस क्या क्या है? लैरिंग्स जो कि मेंटेन्स एन ओपन एयरवे, रूट्स फूड एंड एयर अप्रोप्रिएटली, assist in sound production. Trachea transports air to and from lungs. Bronchi branch to the lungs. Lungs transport air to alveoli for gas exchange, और alveoli में gas exchange actually होता है. So these are the functions of a lower respiratory tract. Those who want to write can write. So lower respiratory tract के अंदर functions जो है that are larynx maintains an open airway, routes food and air appropriately, assists in sound production. Trachea transports air to and from lungs. This is how it happens, right? So यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक ब्रोंकियोल है, राइट? हमने कहा कि ब्रोंकियोल्स में वो डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाइस में या फिर ब्रोंकियोल्स में है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके एंड में क्या पाया जाता है? एल्वेलाई जो है वो पाया जाता है। इस एल्वेलाई में हम देख सकते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो रहते हैं, राइट? एंड किस प्रकार से इस कंडीशन में वो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये साइड में क्या हो रहा है, कैपिलरीज जो है वो अटैच है और ये एक एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। इस एल्वेलाई में, राइट, दैट इज एल्वेलाई, दैट इज एक पर्टिकुलर एल्वेलस अगर बात किया जाए तो उसमें क्या हो रहा है, इन कैपिलरीज के अंदर से आरबीसीज जो है वो कंटिन्यूसली, दैट इज इम्प्योर आरबीसीज, दैट इज डीऑक्सीनेटेड आरबीसीज जो है वो जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी से होकर आते हैं, राइट, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो उस डीऑक्सीनेटेड आरबीसीज के अंदर डिफ्यूज होता है और उसके अंदर जो CO2 है वो किधर किसकी ओर डिफ्यूज हो जाता है, इसमें देख सकते हो ये इसका एक छोटा सा पार्ट जो है, दिस स्मॉल पार्ट, एंड दिस स्मॉल पार्ट इज अगेन explained or again sorry अगेन इस चीज को थोड़ा बड़ा करके या उसको जूम इन करके उस चीज को बता रखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस इन एन एल्वेलाई, राइट? एल्वेलाई में या फिर एल्वेलस में क्या होता है, राइट? ये एपिथेलियल सेल है एल्वेलस का, एपिथेलियल सेल मतलब क्या होता है, सरफेस सेल, राइट? सो वो उस एपिथेलियल सेल के अंदर वहां पर किस प्रकार से ऑक्सीजन आ रहा है, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, और जो CO2 उसके अंदर था वो CO2 एल्वेलाई के अंदर या एल्वेलस के अंदर वापस एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरीके से गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड द एल्वेलाई। व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेशन? ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम sorry What is human respiration? अगर देखा जाए तो human respiration system allows one to obtain oxygen and eliminate carbon dioxide. Breathing consists of two phases, right? Human respiration का main मकसद क्या है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। This is the main thing, right? Right? This is the main thing, that is human respiratory system का main concept क्या है? It obtains oxygen and eliminate carbon dioxide. Now ब्रीथिंग दो फेसेस में होता है, एक इंस्पिरेशन और
एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, एयर को लेना। एक्सपिरेशन दैट इज प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग आउट ऑफ एयर। जो हम सांस लेते हैं उसको इंस्पिरेशन कहा जाता है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन कहा जाता है। This is the respiratory cycle, right? Respiratory cycle मतलब क्या है? The number of respiration happening, right? That is number of inspiration expiration जो होता है उसको क्या कहा जाता है? Respiratory cycle कहा जाता है। अब क्या हो रहा है? This the left extreme left में जो डायग्राम दे रखा है, जो इमेज है वो किस चीज का है कि क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? रेस्पिरेशन में एक तो हमने ये देखा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। किन तरीकों में या किन तरीकों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मदद होता है, हेल्प होता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किन तरीकों में मदद मिलता है। अब जो है अगला जो है वो क्या रहेगा कि रेस्पिरेटरी साइकिल में उसके अलावा मसल्स, राइट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस प्रकार से चेंज आते हैं वो ध्यान में रखने के वाली बात है। किस प्रकार से चेंज आते हैं? दैट इज इंस्पिरेशन करते वक्त, राइट, दैट इज सांस लेते वक्त। सांस लेते वक्त क्या होता है? हम एयर फ्लोस इन के वक्त क्या होता है? रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। तुम सांस एक बार लेकर देख सकते हो, राइट? सो एक बार ट्राई करोगे तो क्या हो रहा है? रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो है फूलता है या होता है। कब? सांस लेते वक्त। लंग के अंदर जो वॉल्यूम है, राइट, लंग है सर्टेन वॉल्यूम, राइट, कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी आर टेकिंग इन। सो वो लंग का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और उस वक्त डायफ्राम में क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड फ्लैटन्स मूविंग डाउनवर्ड। और जब नीचे की ओर चलता है तो वो डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है। जब एयर हम छोड़ते हैं तो रिब्स अपने रेस्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाता है, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, एयर प्रेशर राइज हो जाता है और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है। सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब हम सांस लेते हैं, और डायफ्राम रिलैक्स कब होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं, राइट? डायफ्राम का एक सपोर्टिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायफ्राम हेल्प्स इन ब्रीदिंग and it has a very great importance, right? So इस तरीके से रिब्स का ऊपर होना, रिब्स का आगे आना, right, हम रेस्पिरेटरी साइकिल में देख सकते हैं। सबसे पहला नो एयर मूवमेंट में इस तरीके का रहेगा, right, that is in the relaxed stage, right? Now when the air is flows, right, जब air flows in उस टाइम क्या होता है? रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स आगे और पीछे होता है, राइट? सो अब जब एयर लिया जाता है तो सबसे पहले आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, राइट? व्हाट हैपेंस? द रिब्स इज, रिब्स का मतलब क्या है? रिब्स का मतलब रिब है। अब उसका मतलब क्या बताऊं? रिब्स का मतलब क्या होता है? हड्डी, राइट? क्या हड्डी? दैट इज जो the skeletal which protects our lungs and hearts, that are known as ribs, right? So वो ध्यान में रहना चाहिए। तुम देख सकते हो डायग्राम सामने दिख रहा है, रिब्स क्या होता है तुम्हें सामने दिख रहा है कि रिब्स क्या होता है ना? अपने बॉडी को छू के देख सकते हो कि रिब्स क्या होता है। एनीवेज, सो रिब्स जो है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव होता है while we इनहेल करते वक्त रिब्स अपवर्ड की तरफ और आउटवर्ड की तरफ मूव होता है। क्यों? क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसी वक्त लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, राइट, और एयर प्रेशर कम हो जाता है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। और रिब्स जब रेस्टिंग पोजीशन पे आता है, तो रेस्टिंग पोजीशन पे कब आता है? जब एयर हम एक्सहेल करते हैं, व्हेन वी एक्सहेल, राइट? सो दैट इज द
respiratory cycle, that is inspiration, expiration. So external respiration, that is क्या होता है, carbon dioxide movement out of the blood returning from tissues has higher concentration of carbon dioxide than air in the alveoli. Right, external respiration, that is कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट किस प्रकार से होता है कि ब्लड जो कि टिश्यू से आ रहे हैं उनके पास क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा देन एयर. यहाँ पर एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है. राइट, सो वहां पर जो ब्लड टिश्यू से वापस आ रही है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा. राइट, सो उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड. पल्मोनरी कैपिलरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, ये ध्यान में रहना चाहिए. नाउ ब्लड लिविंग द लंग्स इन ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड पुअर. जो लंग्स को छोड़कर या फिर लंग्स से होकर बाय दैट आई मीन कि लंग्स से जब ब्लड जो लंग्स की तरफ आती है वो कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है. विच दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. लेकिन लंग्स से जो जाता है ब्लड, राइट, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पुअर होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स. राइट, ब्लड और बॉडी सेल्स. राइट, जो क्या हुआ सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो टिश्यू से सेल आए, अब जो ऑक्सीजन लंग्स को छोड़कर सेल्स में गया, टिश्यूज में गया, वहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जा रहा है. राइट, ये कंफ्यूज नहीं होने का है इसमें. राइट, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन वो दोनों अलग चीज है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन वो दोनों अलग चीज है. एक्सपायरेशन का मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं है. राइट, इसके अंदर एक तरीके से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर वो केसेस हो जरूर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट आउट ऑफ द ब्लड से बाहर निकल रहा है. एक अगर देखें कि एक्सपिरेशन के अंदर भी जब हम चेक करते हैं, जब हम आगे देखते हैं, तो दिस इज द वन थिंग व्हिच हैपेंस. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट आउट ऑफ द ब्लड, एंड उस वक्त कैसे हो रहा है वो, जो कि ब्लड जो कि टिश्यू से वापस आ रहा है उसके अंदर क्या ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ऑक्सीजन से ज्यादा. वो एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. कहाँ पर, एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई में होने के बाद उसके अंदर अब ऑक्सीजन भर जाता है, तो ऑक्सीजन वो जो है यहाँ से लंग्स से छोड़कर या एल्वियोलाई छोड़कर वो अब यहाँ से ब्लड जो जाता है वो कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू व्हाट ऑकर्स इन द लंग्स. और इंटरनल रेस्पिरेशन में ऑपोजिट रिएक्शन होता है. राइट, किस प्रकार का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ टिश्यू टू ब्लड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू. लंग्स में जो होता है उसके ऑपोजिट यहाँ पर देखा जाता है. क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू के डिफ्यूजेस आउट ऑफ द टिश्यू टू ब्लड. लंग्स में क्या हो रहा था, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर था, वो सेल्स में था, और वो एल्वियोलाई में या एल्वियोलस में जा रहा था. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल्स या टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड की ओर जा रहा है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड इनटू द टिश्यू. सो क्लियरली जो चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये वाला जो रिएक्शन है इंटरनल रेस्पिरेशन का, राइट, दिस इज क्लियरली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द लंग्स. जो लंग्स में जो हो रहा है उसका क्लियर ऑपोजिट हो रहा है. लंग्स में एक और बात क्या हो रहा है, लंग्स में
इम्प्योर ब्लड आ रहा है। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो किसके अंदर आ रहा है, वो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। और जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन था वो किसमें डिफ्यूज हो रहा है, ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है। और वो ब्लड अब जब सेल्स तक जाता है तो वहां पर क्या हो रहा है, जो सेल्स और टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जा रहा है और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में जा रहा है। ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू में जा रहा है, टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रहा है। दैट इज व्हाट which happens in the internal respiration. राइट, सो अगर हम रेस्पायरेशन को चार भागों में डिवाइड करें, राइट, अगर चार भागों में हम उसको डिवाइड करें, राइट, तो रेस्पायरेशन क्या हो जाता है, दैट इज सबसे पहला इसके अंदर क्या है, ब्रीथिंग वेंटिलेशन, जहां पर ऑक्सीजन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लंग्स। दिस इज द वेरी जनरल कंसेप्ट विच हैपेंस, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। अब इस ब्रीथिंग के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या है, गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। एक्सटर्नल में गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिर एक और होता है दैट इज सेलुलर respiration, that is oxygen used to produce ATP and carbon dioxide is the waste product, right? क्या हो रहा है, carbon dioxide is the waste product. फुल फॉर्म ऑफ ATP मैंने पहले बता दिया दीपांशु, पहले ध्यान में रहना था, राइट? तो जब मैंने वहां पर बताया था कि ATP का, तो वहां पर बताया ये भी था कि where does this process occur? Type in the chat. पता नहीं मुझे, तो यस टाइप इन द चैट कि उस टाइम जब एटीपी के बारे में बताया था, तो एटीपी प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर होता है, तो कहाँ पर बना था, नो तनिष रॉन्ग, नो, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एटीपी एल्वेलाई में कहा क्या हो रहा है वंशिका, एल्वेलाई में एल्वेलाई में क्या हो रहा है, this is happening in alveoli, that is gas exchange between air and blood. गैस एक्सचेंज हो रहा है, एल्वेलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चल जाता है, एल्वेलाई का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, वो चीज हो रहा है एल्वेलाई में। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है कहां पर, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो जा रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज हो रहा है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का टर्म मतलब सेलुलर, सेलुलर मतलब क्या, सेल के अंदर, सिर्फ सेल के अंदर, राइट? सो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, जहां कहीं भी हो रहा है वहां पर क्या बन रहा है, एटीपी। यस, कहां पर हो रहा है फिर, हाँ, क्लास में अगर ध्यान नहीं दिया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा,
क्योंकि मैंने कहा है पहले भी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ध्यान नहीं दिया तो यू विल फेस प्रॉब्लम। ढूंढ के बताया क्या गर्वित, या खुद बताया? हाँ गर्वित, ढूंढ के, पूछ के, या फिर खुद का दिमाग लगाया, या क्या बोलते हैं, जो पहले पढ़ा था या पहले लिखा था उसको ध्यान में रखा है? ओके, सो इट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो फर्स्ट स्लाइड में लिख रखा है मैंने, है ना, मैं इसलिए मैं वापस लेके गया, मैं फर्स्ट स्लाइड में जो लिखा था, राइट, मैं हो सका मैं बता देता वहां पर, राइट, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज दिस साफ लिख रखा है, सेलुलर मैकेनिज्म इज द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द वेयर, इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू मेक एटीपी। जो फर्स्ट स्लाइड में दिखाया वो मैंने लास्ट स्लाइड में पूछा तुमसे, राइट, लास्ट टॉपिक में पूछा कि होता कहाँ है, इसलिए मैंने कहा है कि यू शुड ग्रैब द नोट्स, और नोट्स नहीं लिखे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अगर लेशर वे में क्लास लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? टाइप एवरीबडी, ऑल द 15, all the 15 type in the chat box, where does the solar respiration occurs? Everybody fast. Everybody. Yes, others fast. Vanshika, where does it happen? Madhavi. So ये ध्यान में रहना चाहिए, right? Adenosine triphosphate, right? Adenosine triphosphate is the full form of ATP. Adenosine triphosphate. Okay, so दिस आर द फोर। अगर हम जो पहले जितना जो भी पढ़ा है उस चीज को अगर समराइज करते हैं तो समराइज में क्या है, 4 रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ब्रीथिंग, ऑक्सीजन इनटू एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लंग्स, फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड, इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि
oxygen used to produce ATP, and that is carbon dioxide is the waste product. Where does this process occur? This process occurs in mitochondria. Okay, so likewise यहाँ पर ये ध्यान में रहना चाहिए, राइट? ये फॉर रेस्पिरेशन है, यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, डायफ्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है, राइट? ये जो रोल है, ये वाला डायग्राम जो है वो हमेशा दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि डायग्राम में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करते वक्त, राइट? है ना, सांस लेते वक्त डायफ्राम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं? लास्ट टाइम मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगा, दैट इज एयर फ्लोज इन, राइट? सो एयर फ्लोज इन के वक्त क्या हो रहा है? रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? सांस लेके देख सकते हैं, सांस लेते तो हम ऊपर की तरफ उठते हैं, राइट? हमारा रिब्स जो है अपवर्ड होता है और बाहर की तरफ आता है, सो दैट इज अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, एयर फ्लोज एंड लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए और एयर प्रेशर कम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटन मूविंग डाउनवर्ड, एयर फ्लो इज आउटवर्ड, रिब्स रिटर्न टू रेस्टिंग पोजीशन and lung volume decreases causing air pressure to rise, then the diaphragm relaxes. This is the what to say, a brief overview of what happens in the ribs or what happens in the lungs during respiration. In the lungs, that is respiration में diaphragm का क्या मदद है, external intercostals और उनका मदद किस प्रकार से है. Moving on, the blood and the circulatory system, right? So blood and the circulatory system हम थोड़ा सा इसमें करते हैं. Introduction, that is cardiovascular system क्या है? It is the transport system of our body. What is it? It is the transport system of body. It comprises blood, heart and blood vessels. किस चीज में comprise होता है ये? Blood, heart and blood vessels. The system supplies nutrients to and remove waste products from various tissue of body. The system supplies nutrients to and remove waste products from various tissue of body. The conveying media is liquid in form of blood which flows in closed tubular system. So we need to understand what it is. सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा क्या है? हमारा वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. Then it comprises blood, heart and blood vessels. The system supplies nutrients to remove and waste products from various tissue of body, right? ये सिस्टम क्या करता है? न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है और वेस्ट को रिमूव करता है. मतलब दोनों काम यही करता है. अच्छा चीज भी प्रोवाइड ये करता है और खराब चीज भी लेकर जाता है, राइट? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी यही करता है और अच्छे चीज को लेकर भी यही जाता है. कन्वेइंग मीडिया, कन्वे हम जब लेटर लिखते हैं या फिर हम कुछ बोलते हैं कि कन्वे माय रिगार्ड्स बोलते हैं, राइट? सो कन्वे माय रिगार्ड्स मतलब क्या? मेरे जो भी ग्रीटिंग्स है वो तुम पहुंचा देना या तुम उनसे कह देना, उसका मतलब ये होता है. तो यहाँ पे कन्वेइंग मीडिया मतलब क्या है? जहां से भी ये होकर जाता है या जहां से होकर आया है वो पर्टिकुलर ऑर्गन उस ऑर्गन के दूसरे ऑर्गन के पास जा नहीं रहा है, बल्कि यहाँ से जो भी मैसेजेस उसको भेजना है वो ब्लड के माध्यम से उसको भेज देता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें जो भी जो जनरल फंक्शन है वो उस हिसाब से क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम में बताता है, राइट? क्लोज ट्यूबुलर, ओपन नहीं, राइट? इसलिए हम किसके अंदर हम पढ़ते हैं? दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम.
So main conveying things are heart, capillaries, arteries, and veins. Components of blood. Blood is made up of 4 major components, that is plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. क्या क्या है? प्लाज्मा, द लिक्विड पोर्शन, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा क्या है? इट इज ए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब क्या होता है? एक हल्का कलर, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड, येलोइश लिक्विड जो है वो पाया जाता है जब हम ब्लड को सेपरेट करते तो दिखता है, राइट? सो उसके अंदर it takes about total value of blood, total volume of blood, and helps in transport of food, CO2, waste and salt. किस चीज में ट्रांसपोर्ट करता है? वो फूड को भी वही ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वही ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट भी वही करता है और सॉल्ट भी वही करता है। It constitutes 55% blood, right? प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड है, राइट? 55% ब्लड के अंदर जो कंटेंट है वो प्लाज्मा है। दिस इज ऑफ दिस, और जिसके अंदर 92% क्या है? वाटर है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हाँ, प्लाज्मा को ब्लड से अलग कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूजेशन, राइट? सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आरबीसी अलग हो जाता है और प्लाज्मा अलग हो जाता है। तो रिसर्च लैब्स में किया जाता है, या फिर ये जो जितने भी लैब्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब्स होते हैं, राइट? वो बायोकेमिस्ट्री लैब में तुम्हारा जब टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के अंदर सबसे पहला प्रोसेस सेंट्रीफ्यूजेशन के वहां से ही हम एग्जैक्टली पता चल सकता है। यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर है वो अलग चीज है, बट inorganic or organic substance is different in that terms, right? Organic and inorganic substance are different. It is not based on, or this organic और organic substance के basis पे ही inorganic और organic chemistry है, वो चीज पे नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ नारायण? Okay, so हम थोड़ा सा और देखते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। रेड ब्लड सेल्स, राइट? रेड ब्लड सेल्स क्या है? आरबीसी लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। ये ध्यान में रखने वाली बात है, राइट? क्यों? क्योंकि तुमने पिछले साल पढ़ा होगा, राइट? क्या हुआ हिमांशु? व्हाई डिड यू रेज द हैंड? ओके, पिछले साल तुमने पढ़ा था दैट इज आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन ध्यान में रहने वाली एक और बात है कि आरबीसी में न्यूक्लियस कब नहीं रहता है? जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है, राइट? जब मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है। ओके, सो make up about 99% of the blood cellular component. 99 blood cellular component के 99% में क्या प्रेजेंट रहता है? आरबीसी। और रेड कलर किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी रेड कलर का हो जाता है। आरबीसी का लाइफ कितना है? अबाउट 4 months, दैट इज 120 days। रफली कितने दिन तक आरबीसी का लाइफ रहता है? 120 दिन, 120 days और 4 months। Iron from hemoglobin is recycled in the liver and spleen. आयन जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयन है उसको रिसाइकिल किया जाता है, कहाँ से? लिवर एंड स्प्लीन में से। स्प्लीन को एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ग्रेवयार्ड जो है मतलब कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है, राइट? है ना? आरबीसी जब 4 महीने बाद खत्म हो जाता है तो वो कहाँ पर जाके
जाता है, स्प्लीन में जाता है। राइट। व्हाइट सेल्स हमने पढ़ा है पिछले साल और उसके पहले भी तुमने देखा है, सोल्जर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं व्हाइट सेल्स डिफेंड अगेंस्ट डिसीज बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द बॉडी, बेसिकली लाइक सोल्जर्स के तरह काम करते हैं। White cells are able to ooze to the walls of capillaries to patrol the tissues. Types of leukocytes हम बाद में देखेंगे, right? स्प्लीन और कब्रिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन, कोई कहा मैंने। That is the only relation which is there. Yes, Ayush, what is your problem?